بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین والمشرکین والکافرین لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا و مولانا ابو القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراءون ویمنعون الماعون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسول النبی الکریم صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد صاحبان ذی وقار، عاشقان رسول کردگار، موالیان حیدر کرار اور محبان اہل بیت اطہار، سب سے پہلے انتہائی ممنون ہوں جناب فراست عباس لوڈیال صاحب کا کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو یہ سعادت عطا فرمائی کہ آپ حضرات کی خدمت اقدس میں علماء سے پڑھا ہوا سبق سنا سکیں۔ صاحبان محترم، چونکہ وقت انتہائی مختصر ہے، متمداروں کا متمداری کا انتظار ہے، صاحبان محترم بس بغیر کسی تمہید کے اتنا کہنا چاہوں گا کہ اس اللہ کا، اس کریم خالق کا بے انتہا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ وہ اللہ کہ جو خالق کائنات ہے، وہ اللہ کہ جو رازق کائنات ہے، وہ اللہ کہ جو مالک کائنات ہے، وہ اللہ کہ جو رب کائنات ہے۔ ایسا ہے یا نہیں؟ صاحبان محترم، اس کریم اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس ذات نے ہمیں ایسے رہبر عطا کیے ہیں، اس ذات نے ہمیں ایسے پیشوا عطا کیے ہیں، اس ذات نے ہمیں ایسے رہنما عطا کیے ہیں، اس ذات نے ہمیں ایسے ہادی عطا کیے ہیں کہ جن میں ہر ایک اتنا بلند ہے کہ نہ دنیا اگر ان جیسا ڈھونڈنا بھی چاہے، ان جیسا لانا بھی چاہے، ان جیسا دکھانا بھی چاہے، ان جیسا بنانا بھی چاہے تو نہ ڈھونڈ سکتی ہے، نہ لا سکتی ہے، نہ دکھا سکتی ہے اور نہ بنا سکتی ہے۔ اس لیے صاحبان محترم کہ اللہ نے ہمیں وہ ہادی عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ امام عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ پیشوا عطا کیے ہیں، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے ہیں کہ جن میں ہر ایک اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے، اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی ہستی اور میں سید الانبیاء بن جاتی ہے، کوئی اتنا اعلیٰ ہے کہ کوئی ہستی اور میں سید الاولیاء کہلاتی ہے، کوئی اس منزل پر فائز ہے کہ اس کا لقب سید نساء العالمین ہو جاتا ہے، کوئی اس معراج پر ہے کہ اس کا لقب سید شباب اہل الجنہ ہوتا ہے، کوئی اس معراج میں فائز ہے کہ اس کو سید الشہداء کہا جاتا ہے، کوئی عبادت کے اس زینے پر فائز ہے کہ اس کو دنیا زین العابدین کے نام سے جانتی ہے، کوئی علم کی وہ گرہ کھولتا ہے کہ دنیا اس کو پہچانتی ہی باقر علوم کے نام سے ہے، کوئی ایسا ہے جس کا تعارف ہی جعفر خدا ہے، اور کسی پر اللہ کی ایسی عطا ہے کہ وہ خود کاذب العطا ہے، کوئی ایسا ہے کہ اس کی رضا، کوئی ایسا علی رضا ہے کہ اس کی رضا اللہ کی رضا ہے، اور کوئی ایسا تقی ہے کہ اس کے تقوی پر اللہ بھی ناز کرتا ہے، اور کوئی ایسا نکی ہے کہ جس کے رعب اور دبدبے سے اب تک دنیا ڈری ہوئی ہے، اور کوئی ایسا حسن عسکری ہے کہ اس کے بیٹے کے انتظار میں قیامت رکی ہوئی ہے، اور کوئی ایسا قائم ہے
کہ اسی کے دم سے زمانے کا نظام قائم ہے. صاحبان محترم، اللہ نے ہمیں وہ رہبر اور وہ پیشوا عطا کیے ہیں، اور میں کہتے رہتا ہوں کہ بے شک ہر ہستی اپنی جگہ پر اوج کمال پر ہے، مگر اللہ کا شکر ادا کیا کیجئے کہ اللہ نے ہمیں حسین جیسا رہبر عطا کیا. اس لیے صاحبان محترم کہ میں اکثر کہتے رہتا ہوں اپنی مجالس میں کہ دنیا اپنے خاندان کے نام سے پہچانی جاتی ہے، دنیا اپنے قبیلے کے تعارف سے پہچانی جاتی ہے، دنیا اپنے کاروبار کے نام سے پہچانی جاتی ہے، مگر اللہ کا کتنا شکر ادا کروں کہ بحیثیت قوم ہم جب بھی پہچانے جاتے ہیں یا علی کے نام سے پہچانے جاتے ہیں یا حسین کے نام سے. صاحبان محترم، یہ اللہ کی کرم نوازی ہے، اور میں کہتے رہتا ہوں کہ دنیا ان سے کیا مقابلہ کرے گی کہ جو ہر بات میں سردار ہے. اس لیے کہ دنیا کا سب سے جو بڑا منصب ہے وہ ہے نبی ہونا. ایسا ہے یا نہیں؟ ایک انسان کے لیے سب سے بڑا منصب کیا ہے؟ نبی ہونا. اور آپ دیکھیے کہ اگر دنیا کو کوئی نبی ہے تو اس کے سردار سید الانبیاء محمد مصطفیٰ ہے، اور اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ہے ولی ہونا. اگر دنیا کا کوئی ولی ہے تو اس کے سردار سید الاولیاء علی المرتضیٰ ہے. اس کے بعد اگر کوئی عورت ہے تو آپ دیکھیے دنیا کی جتنی عورتیں ہیں ان کی سردار سیدہ نساء العالمین ہے. اس کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ جنتی ہونا ہے. اگر کوئی متقی ہے، اگر کوئی عبادت گزار ہے، اگر کوئی اس قابل ہے کہ وہ جنتی بن جاتا ہے. آج بڑا نعرہ لگتا ہے ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ایسے ہے یا نہیں؟ صاحبان محترم، مگر میں کہتا ہوں کہ کوئی جتنا بڑا جنتی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ صحابی رسول بھی ہے تو اس کے سردار یا حسن ہوں گے یا حسین سید الشہداء ہوں گے. ایک صلوات پڑھیے. صاحبان محترم، اللہ نے ہمیں وہ رہبر عطا کیے ہیں. اور مختصر کروں اپنی بات کو کہ صاحبان محترم، میرے مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ خدارا خدارا خدارا، کہیں ایسا نہ ہو. یہ میرے مولا کی آخری وصیتوں میں سے ایک وصیت ہے. مولا فرما رہے ہیں کہ خدارا خدارا خدارا، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوسرے قرآن پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائے. صاحبان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الماعون کہ جو قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ نمبر 107 ہے، اس کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. بس فقط اس کا ترجمہ اور مفہوم بیان کر کے آپ سے اجازت لوں گا. صاحبان محترم، اس قرآن کی اس سورہ مبارکہ میں اللہ بڑی اہم باتوں کی طرف متوجہ فرما رہا ہے. اللہ کیا فرما رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض ولا طعام المسکین، کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے کہ جو قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی حساب کتاب کا معاملہ ہونا ہی نہیں ہے، گویا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کوئی پوچھ کچھ ہونی نہیں ہے. آگے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو گویا قیامت کو جھٹلاتا ہے؟ آگے اللہ فرما رہا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے. صاحبان محترم، یتیم خدا نخواستہ کوئی آپ کا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھتیجا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھانجا بھی ہو سکتا ہے. یتیم کو دھکے مارنے سے مراد یہ ہے کہ اس کو دھتکارتا ہے، اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتا، اس کا کوئی خیال نہیں رکھتا. توجہ ہے آپ کی؟ اللہ فرما رہا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھلانے پر آمادہ نہیں کرتا ہے، یعنی اللہ یہ فرما رہا ہے، متوجہ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص گویا قیامت کو جھٹلانے والا ہے کہ جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، یتیم کو دھتکارتا ہے، اور مسکین کو نہ صرف یہ کہ خود نہیں کھلاتا بلکہ لوگوں کو آمادہ نہیں کرتا کہ یار یہ مسکین آدمی ہے، اس کی مدد کیجیے. توجہ ہے آپ کی؟ بسم اللہ جناب. صاحبان محترم، اس کے بعد اللہ کیا فرماتا ہے؟ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے، ہلاکت اور تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں.
साहिबान मोहतरम इंतहाई तवज्जो, बड़ा आसान है जी जुमला कह देना, बहुत आसान है इंतहाई। मैं दस्तबस्ता माजत करती कहता हूँ, हमारे कई खुतीब बड़े आराम से कह देती है कि अल्लाह ने कुरान में नमाजियों पर लानत की है और वो यही आयत कोट करते हैं। साहिबान मोहतरम जरा गौर तो कीजिए कि अल्लाह ने लानत किन नमाजियों पर की है? उन नमाजियों पर की है कि जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। इधर अजान हो रही है, मैं मैदान की तरफ जा रहा हूँ, इधर अजान हो रही है, मैं मार्केट की तरफ जा रहा हूँ, इधर अजान हो रही है, मैं किसी और काम से जा रहा हूँ, कोई पता नहीं, मगरिब का टाइम गुजर गया, इशा का टाइम गुजर गया, सुबह फजर का टाइम गुजर गया, गफलत में सो रहा हूँ। तो बच्चों है आप क्या कहने साहिबान मोहतरम, अल्लाह फरमा रहा है कि हलाकत और तबाही है उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं। इसके बाद अल्लाह अगली आयत में क्या फरमा रहा है? अल्लज़ीना हुम युराऊन, और यही आयत इसके साथ भी अटैच है कि हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए कि जो दिखावे के लिए अमल करते हैं। साहिबान मोहतरम, बड़ा खतरनाक जुमला है कि हलाकत और तबाही उन नमाजियों के लिए जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, और हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए कि जो दिखावे के लिए अमल करते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मैं दिखावे के लिए मजलिस पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हलाकत और तबाही में हूँ। अगर खुदा ना खास्ता मैं दिखावे के लिए नमाज पढ़ता हूँ, अल्लाह फरमा रहा है कि मैं हलाकत और तबाही में हूँ। अगर खुदा ना मैं 10 बस्ता माफ़ी मांगते हुए, अगर खुदा ना खास्ता मैं दिखावे के लिए मातम करता हूँ, तो अल्लाह फरमा रहा है मैं हलाकत और तबाही में हूँ। साहिबान मोहतरम, कोई भी ऐसा काम कि जो इबादत है, लेकिन अगर मैं दिखावे के लिए वो अमल करता हूँ, फ़कत दिखावे के लिए, तो अल्लाह फरमा रहा है कि हलाकत और तबाही में हूँ। और इससे अगला जुमला अल्लाह एक और जगह इससे अगली आयत भी इसी के साथ अटैच है। अल्लाह फरमा रहा है कि वह यमनऊनल माऊन, कि हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए कि जो अपनी नमाजों से गाफिल रहते हैं, जो दिखावे के अमल करते हैं, और हलाकत और तबाही है उन लोगों के लिए कि जो एक दूसरे को मामूली चीज़ें देने से भी गुरेज करते हैं। साहिबान मोहतरम, और मैं माफ़ी मांगते गुजारिश करूँगा कि मुझे और कोई बुराई नज़र आई कि नहीं, ये माशरे में ये बड़ी आम सी बात है। एक शख्स आ गया मुझसे मोटरसाइकिल लेने के लिए, भाई मैंने अस्पताल जाना है, मोटरसाइकिल घर में खड़ा हुआ है और मैं कहूँ नहीं यार मोटरसाइकिल तो ख़राब है। साहिबान मोहतरम, दौराने चूँकि बहुत से माशाल्लाह मुलाजमीन बैठे हैं, दौराने मुलाजमत किसी दोस्त ने पेन मांग लिया कि भाई मैंने अपने मशीन की इंस्पेक्शन करनी है, 5 मिनट के लिए पेन दे दो। पेन जेब में लगा हुआ है, नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं दे सकता यार, मैं आप कल देता। तवज्जो है आपकी? अल्लाह फरमा रहा है कि वो हलाकत और तबाही में है। एक मोमिन आ गया मेरे पास कर्जे हसना तलब करने के लिए, मेरी जेब में पैसे मौजूद है, मैं दे सकता हूँ, मगर उस मोमिन को मैं ये कह के जेब में मौजूद है, मैं कह रहा हूँ यार मेरे पास नहीं है। अल्लाह फरमा रहा है कि हलाकत और तबाही में है कि जो मामूली चीज़ें देने से एराज करता। मेरी माँ बहनें सुन रही हैं, ख़वातीन में ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि अक्सर औकात जब उनसे कोई पड़ोसी बर्तन मांगने के लिए आता है वो इनकार कर देती है। ऐसी है या नहीं? वो बर्तन क्या मामूली चीज़ है, चंद प्यालियाँ, चंद गिलास, चंद प्लेटें, कुछ चमचे, अक्सर महल्ले में चीज़ें मांगी जाती हैं, और ख़वातीन साफ होने के बावजूद इनकार कर नहीं हमारा तो सेट टूट गया। अल्लाह क्या फरमा रहा है कि हलाकत और तबाही में है वो शख्स कि जो अपने दूसरे मोमिन भाइयों को मामूली चीज़ें देने से भी इनकार कर देते हैं, जब गुरेज करते हैं। एक सलवात पढ़िए बवाज़ में। नारे तकबीर, अल्लाहू अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह, एक ज़बान नारे हैदरी। साहिबान मोहतरम, अभी बड़ा अच्छा इन्होंने शेर पढ़ा ज़नी के हवाले से। आपकी बात को मैं मज़ीद आगे बढ़ाता हूँ। एक मर्तबा मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम तशरीफ़ ले गए एक बाज़ार में। जब मेरे मौला उस बाज़ार से गुजर रहे थे ना, तो वहाँ पर कुछ कसाब की दुकानें थी। किसकी दुकानें थी? कसाब की दुकानें थी। और वो कसाब उस वक्त गोश्त काटने में मसरूफ़ थे। किसी ने बताया उनको जाके कि यहाँ से अभी अभी मौला हुसैन गुजरने वाले हैं, गुजरेंगे वो। जब उन्होंने ये देखा बड़े बेताब हुए। वो जो कसाब थे वो मौला के चाहने वाले थे।
وہ بڑے बेताब हुए, उन्होंने गोश्त काटते हुए ऐसे बेताब हुए कि अपनी उंगलियां काट ली. जब उन्होंने उंगलियां काट ली, मेरे मौला तो वहां से गुजर गए, चंद लम्हों की बात थी, मौला गुजर गए. एक शख्स दौड़ता हुआ गया मेरे मौला के पीछे और उसने जाकर रोक के कहा कि मौला आपके चाहने वाले ये कसाब जो है, जब आप यहाँ से गुजरे, उन्हें पता चला कि आप यहाँ से गुजर रहे थे, उन्होंने आपकी मोहब्बत में गोश्त काट रहे थे कि आपकी मोहब्बत में अपनी उंगलियां काट ली. अल्लाहु अकबर. मौला का जब ये बात पता चली, मेरे मौला वापस है. मेरे मौला ने कहा मेरी मोहब्बत में उन्होंने ये किया है. इमाम ने फरमाया सारे कसाबों को इकट्ठा करो. सारे कसाबों को इकट्ठा किया गया. जिसकी उंगली कटी थी, मौला ने उसकी उंगली को मस किया और उसकी उंगली बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे कटने से पहले थी. साहिबान मोहतरम, मुझे ये जुमला कहने दीजिए, क्या अब भी हमें दुनिया को बताने की ज़रूरत है कि हमारी जंजीर जनी का फ़लसफ़ा क्या है? आप देखिए 10 मुहर्रम को एक जंजीर जन जंजीर मारता है, 11 मुहर्रम को उसके ज़ख्म ठीक हो जाते हैं. ऐसे है या नहीं? मैं खुद जंजीर जनी करता हूँ और आप यकीन करें कि 10 मुहर्रम को जंजीर मार के आता हूँ और 11 मुहर्रम की सुबह मुझे पता नहीं होता कि मैं जंजीर मारे भी है या नहीं. तो आप मुझे कहने दीजिए कि हम तो रिवायात में पहले ये पढ़ते थे कि ये जख्म मौला की दुआ से ठीक होते हैं, हमें तो अब पता चला कि ये मौला की दुआ से नहीं, मौला के मस करने से ठीक होते हैं. एक सलवात पढ़िए मेरे मौला के साहिबान मोहतरम, ये हस्तियाँ वो पाक हस्तियाँ हैं कि बिलखसूस मैं अपने मौला व आका जनाब रसूलुल्लाह मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र करना चाहूँगा. वो हस्ती के जो इतनी मुकद्दस है, इतनी मुताहर है कि उसकी ज़बान से वही निकलता है जो वही कहती है. अगर वो किसी को बुलाता है तो वही के मुताबिक, अगर किसी को पास बिठाता है तो वही के मुताबिक, और अगर किसी को पास से हटा देता है तो वही के मुताबिक. साहिबान मोहतरम, इतनी पाकीज़ा ज़बान है मेरे नबी की, इतनी मुताहर ज़बान है मेरे नबी की कि मेरे नबी की ज़बान से जब कुछ बाहर आता है, या वो कुरान बनता है, या वो हदीस नबवी बनती है, या वो हदीस कुदसी बनती है. और इससे अगला जुमला कहूँ कि मेरे नबी की ज़बान कोई ऐसी पाकीज़ा है ना कि मेरे नबी की ज़बान को जब कोई चूस लेता है तो या वो अली अल मुर्तज़ा बनता है, या वो हसन मुर्तज़ा बनता है, या वो हुसैन सैयद शुहदा बनता है. साहिबान मोहतरम, उसी नबी ने इरशाद फरमाया अपनी मुकद्दस ज़बान मुताहर से, ये इरशाद फरमाया कि ज़य्यनु मजालिसकुम बिज़िक्र अली इब्न अबी तालिब, लिअन्न ज़िक्रहु ज़िक्री ज़िक्रुल्लाह व ज़िक्रुल्लाह इबादा, कि अपनी मजालिस को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से, इसलिए कि अली का ज़िक्र मेरा ज़िक्र है, मेरा ज़िक्र अल्लाह का ज़िक्र है और अल्लाह का ज़िक्र इबादत है. साहिबान मोहतरम, मैंने जब इस हदीस को पढ़ा ना तो मैंने सोचा कि मजलिस तो कहते हैं अरबी में 2 अफराद की गुफ्तगू को, 3 अफराद की गुफ्तगू को, मगर ये कैसा मौजज़ा है. आप देखिए कि दुनिया के जितने मज़ाहिब हैं, किसी मज़हब के पास, किसी मसलक के पास लफ्ज़ मजलिस नहीं है. साहिबान मोहतरम, दुनिया के पास रस्म का लफ्ज़ है, आज रस्म कुल है, आज रस्म स्वयं है, आज रस्म चेलम है. दुनिया के पास मुज़ाकरे का लफ्ज़ है, आज मदनी मुज़ाकरा है, आज तबलीगी मुज़ाकरा है, आज फलाह मुज़ाकरा है. ऐसे है या नहीं? दुनिया के पास कॉन्फ्रेंस है, आज अज़मत सहाबा कॉन्फ्रेंस है, आज अज़मत अहले बैत कॉन्फ्रेंस है, आज फलाह कॉन्फ्रेंस है, आज फलाह कॉन्फ्रेंस है. मगर कैसा मौजज़ा है कि मजलिस का लफ्ज़ अगर है तो फ़कत अली वालों के पास, इसलिए कि रसूल ने फरमाया था कि मजालिस को ज़ीनत दो अली के ज़िक्र से, इसलिए कि जहाँ अली होगा वही मजलिस होगी. साहिबान मोहतरम, आज 23 मुहर्रम उल हराम गुजर चुका है, 24 मुहर्रम उल हराम की रात है और यह अय्याम है उस अली के, वो अली के जो इतना गैरतमंद था ना कि रिवायात में आता है कि एक मरतबा मेरे मौला की वालदा इमाम ज़ैनुल अबीदीन इस्लाम की वालदा माजदा, वो वज़ू कर रही थी, मेरे मौला ने अपने सर को झुका दिया. मेरे मौला हुसैन देख रहे थे, उन्होंने पूछा, ऐ अली, मैं आपको देख रहा था कि जब आपकी वालदा वज़ू कर रही थी आप अपने सर को झुका लेते थे. मेरे मौला ने फरमाया,
बाबा जान मैं कैसे ना अपने सर को झुकाता कि जब एक औरत वुजू करती है और जब वो मसा करती है तो उसकी चादर उसको हटाना पड़ती है। मैं कहता हूँ मेरे मौला ने कैसे वो मंजर देखा होगा जब कभी ज़ैनब के सर से रिदा उतर रही है, कभी जालिम कलसूम के सर से रिदाओं को छीन रहा है, कभी सकीना के सर से रिदाओं को नोचा जाता है। मालूम नहीं मेरे मौला ने कैसे देखा होगा। और इसी वजह से मेरे मौला से जब किसी ने पूछा ना कि मौला आपको सबसे ज्यादा तकलीफ कहाँ पर हुई, मेरे मौला ने रो कर 3 मरतबा कहा अशाम अशाम अशाम। साहबान मोहतरम मेरे मौला आप देखिए मेरे मौला एक जगह फरमाते हैं कि बहुत आसान है, गो के आसान नहीं है। मेरे मौला ये फरमाते हैं कि आसान है बाजुओं को कटाना, मेरे मौला फरमाते हैं कि आसान है जिगर में बर्ची को लगवाना, आसान है गले पे तीर को खाना, मगर ये बहुत मुश्किल है कि माँ बहनों के साथ नंगे साथ। और साहिबान मोहतरम अल्लाह आपको आबाद रखे। मेरे मौला की अजमत में सलाम हो कि मेरे मौला ने वो मंजर कैसे देखे होंगे जब एक भाई के सामने उसकी छोटी सी बहन को एक जालिम तमाचे मार रहा हो। मालूम नहीं कैसे देखा होगा, मालूम नहीं कैसे देखा होगा। मेरे मौला जब खैमों में थे और उधर हुसैन कभी अली अकबर का लाशा लेकर आ रहे हैं, कभी अब्बास का लाशा, कभी अब्बास के बाजू लेकर आ रहे हैं, कभी अली असगर का लाशा लेकर आ रहे हैं, कभी कासिम के टुकड़े इकट्ठे करके ला रहे हैं। मालूम नहीं ये कोई पूछे तो जाके ज़ैनुल आबिदीन से पूछे कि मौला आपने कैसे वो वक्त गुजारा। मगर याद रखिए साहिबान मोहतरम मेरे मौला दुनिया के सबसे बड़े अज़ादार का नाम ज़ैनुल आबिदीन है, मगर दुनिया के सबसे बड़े नमाज गुजार का नाम भी ज़ैनुल आबिदीन है। और मेरे मौला ने अपनी जो जीनत बने हैं वो इबादत में बने हैं। इसलिए साहिबान मोहतरम बस आखिरी जुमला कि बेहतरीन मातमी वो है जो नमाजी है और बेहतरीन नमाजी वो है कि जो मातमी है। बावाज़ बुलंद सलावत।